Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today, we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we will not take any specific stock information. The numbers to call us on are 2331 4444, 23717106 or 23717117. Those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताज़ा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज शनिवार है और हर एक शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं हिंद किसान चैनल के एडिटर इन चीफ हरवीर सिंह। हरवीर, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम हरवीर जी, नमस्कार। सबसे पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं राजेश लेख। Foreign direct investment in India surges 15% to $30 billion in April-October period this year, says Union Minister Prakash Javadekar. EPFO extends time limit for submission of Jeevan Praman Patra by pensioners till February 28. And at the Wall Street, the Dow gains 0.1% and Nasdaq jumps to a record high. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इस वर्ष अप्रैल से अक्टूबर के बीच 15% बढ़कर $30 अरब तक पहुंच गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है और वॉल स्ट्रीट में डाउ ने 0.1% बढ़ा और नैस्डैक भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। Union Minister Prakash Javadekar today said foreign direct investment into India surged by a healthy 15% to $30 billion in April-October this year. In a tweet, Mr. Javadekar said, Make in India for the World campaign launched by the Prime Minister Narendra Modi has picked up pace and is firmly on course to make India an industrial hub for the world. We will take our experts' comment after we have taken our first caller from Mumbai online with us. Nitin, we welcome you to Market Mantra. Please ask your question. हेलो Nitin, please ask your question. हेलो जी, नितिन बोल रहा हूँ मैं मुंबई से। हाँ, सवाल पूछे। जी नमस्कार सर। नमस्कार। मुझे ये पूछना था सर, अभी ये जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो उसका फ्यूचर क्या होगा सर? अभी जो प्राइसेस चल रहा है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे क्या असर पड़ेगा, उसको कुछ बढ़ने का चांस है या कैसा है? धन्यवाद सर। जी, ये क्रूड ऑयल प्राइसेस के बारे में पूछ रहे हैं। जी जी जी। देखिए, जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर बढ़ती हैं तो क्रूड ऑयल का प्राइसेस तो फॉर्म होगा, और इधर बीच में कुछ हुआ भी है और विंटर्स में ज्यादा कंजम्पशन होता है, वो भी एनर्जी कंजम्पशन, तो इसका एक रहता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही हैं दुनिया भर में,
तो उसका एक इम्पैक्ट है। प्राइसेस बढ़ेगी तो उसका हमारे ऊपर असर आता है, हमारे इन्फ्लेशनरी असर आता है। अगर आप देख भी रहे होंगे तो पिछले कुछ दिनों में जो रिटेल प्राइस है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, जो पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनीज है, उन्होंने उसमें कुछ ज्यादा किया है। Okay, Harveer, the story that we had read a while back of FDI investment worth $30 billion from April to October. We must be doing something really good for the interest shown by the investors. Yes, Rajesh, if you see, in emerging economies, we are one of the best, I think, favorite economy to receive FDI flow. It has come to some companies also in a big way in retail and technology, particularly information, communication technology, and stock market also received, I think, highest flow in November through FPIs. So that money is flowing to India. So it means India is a favorite place for the investors to get a better income on their investment, and they are seeing the future of the economy in a good way. और दिल्ली से हमारे श्रोता सतीश लाइन पे हैं। सतीश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जो हमारे देश के जो बैंक है इनके पास सर इनके जो सेविंग अकाउंट्स है वो उनकी संख्या काफी ज्यादा है और करंट अकाउंट की संख्या मात्र 10% 15% ही है। और ये जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स है इनके पास करंट अकाउंट नहीं होता, सेविंग अकाउंट होता है। ये जब भी इनसे हम कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, इनको कमीशन देते, कभी भी कोई उसको रसीद काट के नहीं देते। तो सरकार इनकी तरफ से सीरियस नहीं होती कि भाई इन लोगों को भी जो कमीशन है उसकी भी रिसीप्ट काट के देनी चाहिए, इनके पास भी करंट अकाउंट होने चाहिए। और जो भी छोटे दुकानदार है इनके पास भी सेविंग अकाउंट होता है। और जबकि यूएस में छोटे से छोटे दुकानदार के पास भी करंट अकाउंट होता है। और जैसे कोई भी आदमी लोन लेने जाता है, वो लोन लेते समय वो अपनी रिटर्न फाइल दिखाता है, लेकिन उसके पास वो सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट नहीं होता। तो सरकार उनसे पूछती नहीं है जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपके पास करंट अकाउंट होना चाहिए, सेविंग क्यों दिखा रहे हो? जी जी, हरवीर जी बताइए। देखिए, एक तो देखना पड़ेगा कि सेविंग अकाउंट तो कोई भी इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट खुलवाता है, करंट अकाउंट बिजनेस पर्पज से होता है। और जाहिर सी बात है कि बिजनेस एंटिटीज का नंबर कभी भी जो जनरल जो कस्टमर है उसके बराबर तो नहीं हो सकता। तो एक तो पहलू ये है, इनका कुछ पॉइंट्स हैं उसमें कि वो टैक्स कंप्लायंस का इशू है। अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर है या रियल एस्टेट एजेंट भी है, अगर उसका इनकम है और उसको वो डिक्लेयर कर रहा है तो इट डजंट मैटर कि वो करंट अकाउंट है उसका या सेविंग अकाउंट है। और ये है कि जिस तरीके से इन्होंने बात किया है तो जो सिटीजन है, जो ऑनेस्ट सिटीजन है, उनको भी आगे आना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि सारे पेमेंट्स वो चेक से करें, जिससे कि जो पेमेंट्स हैं वो रिकॉर्डेड हो। और इधर आप देखिए कि बहुत सारे अब उस तरीके के नियम लागू हो गए हैं कि आपके ट्रैकिंग जो आपके इनकम का फ्लो है, जो ट्रांजेक्शन है वो रहता है। इनकम टैक्स के पास बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन जाती है और उसके हिसाब से वो डिसीजन भी लेते हैं, कंप्लायंस के लिए लोगों को बोलते भी हैं और जहां जरूरत होती है तो एक्शन भी लेते हैं। ये हो सकता है कि कुछ लूप होल्स है, लोग उसका फायदा उठाते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से आईटी का इस्तेमाल बढ़ा है और सब जगह पैन नंबर या बाकी जीएसटी और सब उनका नेटवर्क काफी स्ट्रांग है, तो इसलिए धीरे धीरे ये सब तो कम हो जाएगा। जी। और नोएडा से हमारे श्रोता एसपीएस जैन लाइन पे हैं। जैन साहब नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ नमस्कार जी। हरवीर सिंह जी से मेरा जो प्रश्न है, जो अभी करंट फिगर्स आई हैं जीडीपी के, उसके बारे में है। अभी इंडिया का लास्ट क्वार्टर उससे पहले -24 था, उससे 7.5 माइनस अभी है जी। इसके कंपैरिजन में मुझे कुछ कंट्रीज के भी फिगर हैं मेरे पास। यूके के -20 से स्टिल दे आर -9.6 जी। चाइना इज इन पॉजिटिव, लास्ट क्वार्टर वाज आल्सो पॉजिटिव, चाइना इज 4.9। तो 7.5 इट इज वेरी एनकरेजिंग फिगर। लेकिन कल मैं बीबीसी देख रहा था, उसको इसने रिसेशन के टर्म में दिया है। तो हाउ फार द बीबीसीज कमेंट्स आर
वैलिड? देखिए, बीबीसी कमेंट इज वैलिड, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी जो कॉन्जिक्वेंटली 2 क्वार्टर में अगर आप नेगेटिव हैं, आप डी ग्रोथ हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिसेशन इन इकोनॉमीज टेक्निकल टर्म. सो दे आर राइट ऑन दिस. व्हाट आर दे सेइंग? जहां तक बात यह है कि ये बात सही है कि 23.9% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था फर्स्ट क्वार्टर में, और सेकंड क्वार्टर में ये घट के 7.5% का रह गया है. मैन्युफैक्चरिंग में बल्कि 0.6% का ग्रोथ भी आया है, और एग्रीकल्चर इज स्टिल एट 3.4% ग्रोथ ऑन द ग्रोथ साइड. तो इसका मतलब है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो रिज्यूम हुई हैं लॉकडाउन के बाद जो अनलॉकिंग प्रोसेस में, वो नॉर्मलसी की तरफ बहुत तेजी से जा रही हैं. ये है कि अभी 2 क्वार्टर और बचे हैं, और ये कहना भी मुश्किल है कि हम लोग ग्रोथ में जाकर के इस बार बंद करेंगे, तो वो तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है. लेकिन ये एनकरेजिंग साइन है जिससे कि हर सेक्टर में जो है वो डिग्रो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो काफी कम हुआ है बड़े पैमाने पर. तो और इसी का रिफ्लेक्शन आप देख भी रहे हैं डेटा में, जो टैक्स के नंबर्स आ रहे हैं या मार्केट जैसे परफॉर्म कर रहा है, एफपीआई फ्लो इंडियन इकोनॉमी में और एफडीआई जो आ रहा है, तो ये सब उसी डायरेक्शन में साइन है कि ठीक है, चाइना में क्योंकि उस तरीके से लॉकडाउन नहीं लगे थे और वो उनका पॉजिटिव ग्रोथ है. जी. Anil Kharbanda now joins us from Delhi. Anil, we welcome you. Please ask your question. थैंक यू राजेश जी और अम्बरीश जी, आपको मैं अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ. और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, एनलाइटनिंग प्रोग्राम है, और इकोनॉमिक्स की बहुत एजुकेशन देता है हमें. थैंक यू. तो उसके मैं टोटली विजुअली इम्पेयर्ड आदमी हूँ. न्यू दिल्ली में मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डीयू में. तो आई वांट टू पुट अ क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन अधिक पूछता हूँ जो इकोनॉमिक्स थ्योरी से संबंधित होते हैं, उससे स्टूडेंट्स का फायदा होता है. एक तो ये कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों यानी अलग अलग हैं. कंट्रोवर्सी थी बहुत पहले 80s में 90s में काफी रहती थी कई बार. तो टेक्निकली व्हाट इज द कंडीशन? इज अकाउंटिंग बिकॉज ऑडिटिंग हैज अ क्वासी जुडिशियल स्टेटस आल्सो. और सेकेंडली द गवर्नमेंट विच द अमाउंट दैट इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल पीछे एनवायरनमेंट के लिए जैसे 10 या 15 स्टेट्स को 22 अरब रुपए की अमाउंट जो की गई, तो उसका ऑडिट ये बताइए कि आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होता है कि ट्रांसपेरेंट हो ऑडिट उसका. ये फिलहाल मैं आगे और पूछूंगा, ये पहले बता दीजिए. जी जी, शुक्रिया. जी. देखिए, ऑडिटिंग का ये बात सही है कि क्वेश्चन जुडिशियल भी है, और जो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है उसके लिए सीएजी का ऑडिट होता है. सीएजी की जो रिपोर्ट्स हैं वो पार्लियामेंट में टेबल होती हैं, स्टेट्स के अकाउंट का भी होता है. तो दैट इज द ओनली वे टू अंडरस्टैंड इट. और बाकी जो है उसमें आप आरटीआई के जरिए भी जान सकते हैं कि जिस काम के लिए पैसे का एलोकेशन हुआ था, क्या वाकई वो उसके लिए इस्तेमाल हुआ है, और या कितना हुआ है जो एलोकेट हुआ था. सो दैट इज द वे टू सी द ट्रांसपेरेंसी. हरवीर जी, जैसा कि इनका सवाल था, तो ये मेरे ख्याल में ज्यादा जो कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से जानना चाह रहे थे कि कॉमन मैन इसको कैसे समझे कि ऑडिट है तो ऑडिट किस तरह की चीज है, क्या है और कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लोगों को उससे क्या समझ में आना चाहिए. नहीं, देखिए, एक तो कंपनी कानून के तहत अगर आपकी जो फॉर्म्स हैं जिनका उनका ऑडिट होता ही है और आपको सबमिट करना होता है. ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ऑडिट होते हैं. और उसमें यह है कि आपने जो आपकी आमदनी हुई है, आपके जो खर्चे हुए हैं, आपने जो उसका बैलेंस शीट तैयार की है, क्या वो पूरी तरीके से ठीक है या आपने कोई गड़बड़ी तो नहीं की. क्योंकि बहुत सारी लिस्टेड कंपनी हैं जिसमें पब्लिक का पैसा भी लगा होता है, तो उसके लिए ये एक तरीके का चेक भी होता है, स्टेचरी के चेक एंड बैलेंस के, जिससे कि कोई गड़बड़ी ना हो. जी. और इसमें काफी सारे कई बड़े हाई प्रोफाइल मामले पकड़ में भी आते रहे हैं, इवन इन प्राइवेट सेक्टर. गवर्नमेंट में ये है कि जब हमारे पास जो अकाउंट ऑडिटिंग डिपार्टमेंट होता है, ऑडिटर जनरल और सीएजी, तो वो एक पूरा डिपार्टमेंट काम करता है कि जो सरकार के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो किस तरीके से उनकी आमदनी और खर्चों का हिसाब क्या है, और उनमें कहीं कोई कमियां तो नहीं है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, और बाकायदा पूरी रिपोर्ट तैयार करके दिया जाता है. तो ये सभी पर लागू होता है, जो भी हमारे सरकारी खर्चे हैं, कोई भी लेवल का गवर्नेंस हो, ये आपका छोटे लेवल से लेके और सेंट्रल गवर्नमेंट तक. Okay, Gaurav from Ghaziabad. We request you to stay with us as we take a short commercial break.
बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Welcome back to Market Mantra. We have Gaurav online with us. Gaurav, we welcome you to Market Mantra. हेलो, नमस्ते हरवीर जी। मेरा सवाल एक दूर दराज के किसान के बारे में है, जो बहुत दूर दराज में है। खेती के बहुत कम जमीन है, 1 आध एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ जमीन है 2-3 भाइयों के पास, और वो मसूर बोते हैं और विंटर में तो निकल जाता है 600-150 क्विंटल, लेकिन गर्मियों में कुछ है नहीं स्व सिंचाई के साधन। तो वो अपनी आय बढ़ा कैसे सकते हैं, क्योंकि आसपास कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे जाके वो कुछ बेच भी लें। एक मेरा ये सवाल है कि क्या वो मतलब आपका क्या सजेशन होगा कि जिससे वो अपनी आय बढ़ा लें, दूर दराज में रहते हुए भी कुछ करके वो अपना थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बढ़ा ले, लिविंग स्टैंडर्ड। एक पहला सवाल है। दूसरा सवाल सर, एक निष्पक्ष राय जानना चाहता हूँ, क्या ये किसान जो कानून लाए गए हैं APMC और जो मंडियों से खुले बाजार में बेच सकते हैं, क्या ये वाकई में अच्छा है या नहीं? निष्पक्ष राय मैं आपसे जानना चाहता हूँ। थैंक यू सर। देखिए, ये बात आपने जो कही है कि कोई छोटा किसान जो दूर दराज के इलाके में है, 1 एकड़ का किसान, या उस तरह से कैसे वो अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। एक तो ये देखना चाहिए हमें कि वो क्या उसका क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। अगर वो हाई वैल्यू क्रॉप्स में जाए, खासतौर से क्योंकि छोटे किसान के लिए आमदनी बनाने का उपाय यही है कि उसको, मेरा मानना है कि उसको वेजिटेबल की एक तरीके से खेती करना चाहिए। ये डिपेंड करेगा कि उस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में कौन सा वेजिटेबल ग्रो हो सकता है, क्योंकि फ्रूट एंड वेजिटेबल जो है वो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं। और बाकी अगर सीरियल्स में जाएंगे, पल्सेस में जाएंगे, या और कुछ उस तरीके की क्रॉप होगी, उसमें उस तरीके से बहुत ज्यादा दाम की गुंजाइश, मतलब दाम तो आता है, लेकिन उसमें जो आप चाहते हैं कि एक गुणात्मक चेंज के उसका जो इनकम है उसमें एक सब्सटेंशियल बदलाव आए, तो वो नॉर्मल ट्रेडिशनल क्रॉप से नहीं आएगा, वो उसी के जरिए आएगा। या फिर वो डाइवर्सिफाई करे। अगर प्लेन है तो दे कैन गो फॉर फिशरीज, और वहां पे उसमें अगर अच्छे से करेंगे तो एक बहुत बड़ा इनलैंड फिशरीज का बहुत बड़ा मार्केट देश में खड़ा हुआ है और पॉसिबल है, बहुत अच्छा हो रहा है। इसके अलावा वो डेयरी में जा सकते हैं कि डेयरी में अगर आपके पास अच्छे एनिमल्स हैं और उसमें गवर्नमेंट की स्कीम भी है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है, डिपेंड करता है कि वहां पर अगर कोई अच्छा कोऑपरेटिव का कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि प्रोक्यूरमेंट करता हो अच्छे दाम पे, तो वहां उसमें बेनिफिट्स आ सकता है। तो ये मल्टीपल कुछ ऑप्शंस मैंने बताए हैं जिसके जरिए वो कर सकता है। देखिए, जो 3 कानून आए हैं उसमें एक तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जिसमें गवर्नमेंट का मानना है कि जो स्टॉक लिमिट्स वगैरह जाना चाहिए, ये काफी हद तक एक संतुलित कदम है, बशर्ते कि हम अपने डाटा और इंफॉर्मेशन का जो हमारा नेटवर्क है उसको बेहतर रखें। क्योंकि उसमें नियम ये किया गया है कि 50% और 100% प्राइस इंक्रीज होने के बाद ही उसको लगाया जा सकता है, लेकिन हाल फिलहाल में जैसे ऑनियन में और इसमें पोटैटो में, आलू में दाम बढ़े थे, तो गवर्नमेंट को ऑनियन पे वो काफी सारे स्टेप्स लेना पड़ा था, इंक्लूडिंग स्टॉक लिमिट्स। तो ये है। बाकी कोशिश ये है उसमें कि अगर कोई ट्रेडर कोई भी कमोडिटी खरीदता है तो उसको कम से कम एक थ्रेशोल्ड लिमिट तक तो वो जाए, जिससे कि उसमें से कोई मुनाफा दिखता हो और वो फिर फार्मर से प्रोक्योर कर सके, खरीद सके। तो ये मेरे ख्याल से जो पाबंदियां हैं रेगुलेटर्स की या इंस्पेक्टर राज है, वो उसको खत्म करती हैं, तो उसको देखना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में थोड़ा अगर समझदारी से किसान जाता है तो उसको बहुत सारे जो नियम कायदे हैं उनको देखना चाहिए, लेकिन एक डिस्प्यूट सेटलमेंट का जो उसमें मैकेनिज्म है उसको लेकर के थोड़ा एक अभी एम्बिग्यूटी है और उसको फार्मर्स के लिए वो थोड़ा बेहतर नहीं लग रहा है जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं। और बाकी जो मार्केट का ओपन करने का है उसमें मेरे ख्याल से कुछ फार्मर्स का काफी विरोध भी है
और ये है कि अल्टरनेट मैकेनिज्म जो है उपलब्ध कराया जाए। अब उसमें मेरे ख्याल से जिन राज्यों में ये पहले से इस तरह की स्थिति है, बिहार वगैरह में, ये हमें सरकार को कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल्स लेकर आना चाहिए कि किस तरीके से वहां पे बेनिफिट्स हुए हैं। तो वो एग्जाम्पल्स अगर आप लेकर के आएंगे तो फिर वो फार्मर्स को आप कन्विंस कर पाएंगे कि ये कदम ठीक है। और नोएडा से हमारे श्रोता राजेंद्र लाइन पे हैं। राजेंद्र नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर। सर माय that the companies offer. How can, like, there are some profit-making companies which don't give dividend, but then there are some companies which are not so good in profits, but still they are able to manage giving dividends. So how do we analyze whether a particular company which is giving dividend will keep on giving dividend in future also, and if there is an XYZ company which is not giving a dividend right now, but it will be giving dividend in some point of time. So how can we analyze that? Thank you. एक्चुअली देखिए कि जो भी कंपनीज हैं वो अपने जो प्रॉफिट्स हैं उसको वो उस पे डिविडेंड दे या ना दे, उसको उनका काफी एक अपना डिसीजन है कुछ सोच समझ के, और ये कोई कंपल्सन नहीं है, क्योंकि वो शायद जो उसके पास फंड्स हैं वो फ्यूचर प्लान या इन्वेस्टमेंट के लिए वो रोक के रखें। तो ये, लेकिन ये माना मतलब एक धारणा है कि जो अच्छी कंपनियां हैं जो इन्वेस्टर्स को अपने साथ जोड़े रखना चाहती हैं, वो अच्छा प्रॉफिट कमा रही हैं, तो वो डिविडेंड देने के साथ उसमें इम्प्रूव भी करते हैं, और या फिर एक्स्ट्रा जो है राइट इश्यू ला करके और शेयर्स भी देते हैं लोगों को। और जो सक्सेसफुल कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें ये दोनों चीजों का जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करते हुए आपको दिखेंगे। मुंबई से हमारे श्रोता केशव लाइन पे हैं, उनसे अनुरोध है कि थोड़ी सी प्रतीक्षा करें। तब तक हम आज लेते हैं आज की दूसरी हेडलाइन स्टोरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे ईपीएफओ से जुड़े लगभग 35 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। यह फैसला कोविड-19 महामारी और बुजुर्गों को इससे प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर लिया गया है। फिलहाल पेंशन धारक 30 नवंबर तक कभी भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं, जो जारी होने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा। जीवन प्रमाण पत्र 3,65,000 सामान्य सेवा केंद्रों, 1,36,000 बैंक शाखाओं, डाकघरों और 1,90,000 डाकियों तथा ग्रामीण डाक सेवकों के जरिए जमा कराया जा सकता है। Keshav from Mumbai is with us. Keshav, we welcome you. Please ask your question. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आने वाले समय में मार्केट में और करेक्शन आ सकता है क्या? अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है वैक्सीन के बारे में तो और मार्केट बढ़ेगा? थैंक यू। देखिए, मार्केट का अनप्रेसिडेंटेड है। अप्रैल के बाद नवंबर में 2 अंकों में मार्केट ने ग्रोथ ली है और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है, और इनफ्लो भी बहुत हुआ है। एफपीआई का रिकॉर्ड इनफ्लो हुआ है, और उसका नतीजा ये है कि मार्केट ने बड़ी ऊंचाई हासिल की है। लेकिन इस बीच इस सप्ताह भी आपने देखा होगा कि मार्केट में करेक्शन आया था जो है, क्योंकि एक मार्केट में ये भी है कि कई बार मार्केट फटीग भी होता है कि बढ़ता ही जा रहा है, और क्या वाकई वो वैल्यूएशन जो है वो उतनी बेहतर है कि उस लेवल पे। तो ये आपको काफी मेरे ख्याल से सोचना चाहिए। पीछे बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज आई, यूएस का इलेक्शन में बाइडेन का जीतना, फिर वैक्सीन का जो है ये सब उनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, वो काफी उम्मीद बन गई है। तो ये सब से काफी फायदा हुआ, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि देयर इज नो सर्टेनिटी के मार्केट अपवर्ड ग्रोथ ही लेगा। तो यू हैव टू लुक फॉर ऑल द फैक्टर्स व्हेन यू टेक ए कॉल रिगार्डिंग मार्केट। दिल्ली से हमारे श्रोता अनिल लाइन पे हैं। अनिल नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मेरे को मालूम पड़ा ये बाईबैक ऑफर होता है, ये क्या होता है? जैसे हमने कुछ ले रखे हैं शेयर्स, उसमें वो बाईबैक मांग रहे हैं। मैं नाम नहीं चाहता हूँ कि एनटीपीसी का है। जी जी जी, हरवीर जी। जी देखिए, क्या है कि कई बार कंपनी जो है कंपनी को लगता है कि उसके पास जो खुद के पास जो इक्विटी है, प्रोमोटर्स की जो इक्विटी है, वो उसको इंक्रीज करना चाहते हैं अपना शेयर कंपनी में। उस वक्त वो बाईबैक के लिए जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं उनको ऑफर करते हैं एक सर्टेन प्राइस के ऊपर स्टॉक्स की, और यूजुअली वो मार्केट थोड़ा बेहतर दाम होता है उस वक्त जो प्रिवेलिंग प्राइसेस होती हैं स्टॉक्स की, तो वो फिर उसको बाईबैक करते हैं। या फिर
कई बार कंपनी डिलिस्ट करना चाहती है अपने आप को, तो उसको जो उसके मार्केट में जो शेयर हैं उनको वो बाईबैक करते हैं, उस प्राइस के ऊपर लोगों को पेमेंट करते हैं। तो ये इस तरह से बाईबैक का इस्तेमाल कंपनियां करती हैं। Moving on, the US stocks rose yesterday with Nasdaq closing at a record high as retailers kicked off the year-end shopping season amid record COVID hospitalizations. The Dow Jones Industrial Average rose 38 points or 0.1% to 29,910. The S&P 500 gained 9 points or 0.2% at 3,638, and the Nasdaq Composite added 111 points or 0.9% at 12,206. All three indices rose for the week, in which the S&P 500 reached a new closing high and the blue chip Dow ended above 30,000 for the first time ever. The Nasdaq outperformed as investors favored tech-related market-leading stocks that have fared well during the pandemic, while economically sensitive cyclical stocks weighed. Retailers opened their doors to Black Friday shoppers with social distancing practices and other measures put in place to mitigate infection risks while offering steep discounts. Shares of Walt Disney dipped 1.3%, while the company said it would lay off 32,000 workers, up from the 28,000 announced previously. और एक लेते हैं अच्छी खबर कृषि के क्षेत्र से। सरकार ने कहा है कि खरीफ विपणन मौसम में 310 लाख टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। ये पिछले वर्ष के मुकाबले 18.78% अधिक है। इसमें से 202 लाख टन से अधिक धान की खरीद पंजाब से ही की गई है, जो कि कुल खरीद का 65.24% है। कृषि मंत्रालय ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है। मंत्रालय ने बताया कि खरीद संचालन के अंतर्गत 58,644 करोड़ रुपए के धान की खरीद की गई है और इससे लगभग 28,45,000 से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं। Okay, it's time for us to say goodbye to our listeners, and also Harvi, thank you so much for being with us. थैंक यू राजेश। और चलते हैं आखिर में एक बार मुख्य समाचार फिर जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इस वर्ष अप्रैल से अक्टूबर के बीच 15% बढ़कर $30 अरब तक पहुंच गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है और वॉल स्ट्रीट में डाउ ने 0.1% की बढ़ोतरी दर्ज की और नैस्डैक भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। Foreign direct investment in India surged 15% to $30 billion in April-October period this year, says Union Minister Prakash Javadekar. EPFO extends time limit for submission of Jeevan Praman Patra by pensioners till February 28. And at the Wall Street, the Dow gains 0.1% and Nasdaq jumps to a record high. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.